आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 22 जुलाई 2020 को एक नोटिस जारी की है। नोटिस में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसके गाइडलाइंस में कई चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उन गाइडलाइंस एमेंडेड कॉपी को शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। तो आगे आप देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के गाइडलाइंस में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर द स्कीम ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 2019-2020 अपडेटेड इन जुलाई 2020। आगे देखते हैं क्या गाइडलाइंस है। इंडेक्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द फेलोशिप, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स, ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, रेट ऑफ फेलोशिप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, administrative expenses, monitoring and evaluation, Aadhaar seeding, procedure of release of grant by UGC, resignation and transfer, cancellation of award, modification of the scheme। तो ये सारे हेड्स हैं, इसके अंतर्गत डिटेल्स दिया गया है। आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेलोशिप की? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेलोशिप इज टू प्रोवाइड 5-year fellowships in the form of financial assistance to the students from minority communities notified by the central government to pursue MPhil and PhD. The scheme covers all universities institutions recognized by the University Grants Commission UGC as under कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे इसमें? Central/state universities including constituent and affiliated institutions included under section 2 in bracket F of UGC Act 1956 and having valid accreditation from NAC। NAC से accreditation होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। Deemed universities under section 3 of the UGC Act, that is institution for higher education notified by central government to be deemed university in consultation with UGC and having valid accreditation from NAC। Institution fully funded by state central government and empowered to award degrees। Institutions of national importance as notified by Ministry of Human Resource Development। The fellowship will be implemented by the Ministry of Minority Affairs through UGC for students belonging to the minority communities। The fellowship holders under the fellowship will be known as Ministry of Minority Affairs Scholar। जो स्कॉलर जिनको फेलोशिप मिलेगी उनको कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलर्स। स्कोप ऑफ द फेलोशिप, किस तरह का स्कोप है? The fellowship will cater to the minority community student pursuing regular and full-time research studies leading to award of MPhil and PhD degree within India only। This will enable them to be eligible for employment to the post with MPhil and PhD as prerequisites, including the posts of assistant professor in various academic institutions। यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, या दूसरे तरह की पोस्ट होती है जैसे कि रिसर्च स्कॉलर के बाद साइंटिस्ट वगैरह की, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यूजीसी ही इम्प्लीमेंट करेगी। और साथ ही साथ क्या क्या उसके आगे जानकारी दी गई है ये आप पढ़ सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपके साथ पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। ए कैंडिडेट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ दिस फेलोशिप। He/she should belong to one of the minority communities notified under section 2C of the National Commission for Minorities Act 1992 with Buddhist, Christian, Jain, Muslim, Sikh, ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पारसी, ये 5 कम्युनिटी से होने चाहिए। इसके अलावा जो कम्युनिटीज मेंशन है जो इस एक्ट में, वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। Prior clearance of UGC NET or joint CSIR UGC NET examination will be a prerequisite for award of Maulana Azad National Fellowship for minority students for PhD। यानी आप जिसे भी लेना है UGC NET उन्होंने क्लियर किया हो या फिर CSIR की नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, क्लियर किया हो, वही एलिजिबल होंगे इस फेलोशिप के लिए। The eligibility condition will be as per notification for UGC NET and joint CSIR UGC NET examination। नीचे और जानकारी दी गई है। इन जानकारी को, इन डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज कर। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स।
The total number of slots for the fellowship to be awarded under the scheme is 1000 per year. एक साल में 1000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. Out of 1000 slots available under this scheme, 750 will be allocated for subjects under National Eligibility Test, Junior Research Fellowship of UGC, and remaining 250 for science category students through CSIR UGC NET JRF joint test for science stream. The NET is held twice in a year and 500 selections will be made from each NET. यानी साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो हर साल जो साल में 2 बार हुआ, जैसे सपोज जुलाई वाला हो रहा है या जून वाला हो रहा है, उसमें से 500 लिए जाएंगे और दिसंबर वाले से 500 लिए जाएंगे. 30% of the fellowship shall be earmarked for women students. 30% reservation women students के लिए, remaining 70% will be general candidates के लिए. In case there are shortage of women candidates, the fellowship can be passed to the male students of the same minority committee. Same minority committee के students को पास किया जाता है. टर्म्स एंड कंडीशन और भी हैं, आप पढ़ सकते हैं. स्लाइड को पॉज कर. ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, ये इंपॉर्टेंट है. एमफिल के लिए 2 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स तक आपको मिलेगी. जीआरएफ को 2 साल और एसआरएफ को नील, कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 5 साल, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस व्हिचएवर अर्लियर. अगर आपने थीसिस पहले सबमिट किया तो फेलोशिप एंड हो जाएगी. एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ जीआरएफ एंड एसआरएफ 2 इयर्स, रिमेनिंग 3 इयर्स. एमफिल प्लस पीएचडी 5 इयर्स मैक्सिमम मिलेगा, या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस. रेट ऑफ फेलोशिप भी आप देख सकते हैं. फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 31,000 पर मंथ मिलेंगे फॉर इनिशियल 2 इयर्स जीआरएफ के लिए. फेलोशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उनको 35,000 पर मंथ मिलेंगे फॉर रिमेनिंग टेन्योर, 3 साल का जो टेन्योर होगा उनका. कंटिजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर. उसके बाद 20,500 पर एनम फॉर रिमेनिंग टेन्योर, मींस लास्ट के 3 ईयर से, या उससे पहले अगर आप जमा कर देते हैं. कंटिजेंसी फॉर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 12,000 per annum for initial 2 years, 25,000 per annum for remaining tenure. Escorts, reader, assistant, all subjects rupees 2,000 per month in case of physically and visually handicapped candidate. यानी कोई अगर escort रखते हैं, कोई assistance रखते हैं, उनको 2,000 रुपये अलग से मिलेंगे. HRA, house rent allowance at the rate of 8%, 16%, 24% is allowed to these students who are not provided with hostel accommodation in accordance with Government of India norms as applicable in the city location where the research fellows are working. अगर आप हॉस्टल नहीं मिला है तो HRA दिया जाएगा. दिल्ली जैसी सिटी में 24%, उससे छोटी सिटी जैसे पटना है तो वहाँ 16%, गया जैसी सिटी में आपको 8% मिलेगा. और भी टर्म्स एंड कंडीशन है HRA की, आप पढ़ सकते हैं. वीडियो को पॉज कर आराम से सारे पॉइंट्स को. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूजीसी विल बी द नोडल एजेंसी. सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लें. ये फेलोशिप काफ़ी अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी किस तरह से क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन ये आप पढ़ सकते हैं. पॉइंट नंबर 10, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कैसे मॉनिटर किया जाएगा. आपको फेलोशिप दी जाती है तो आपको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए हैं. आधार सेटिंग करनी होगी आपको, आधार सेटिंग कैसे होगी, ये सब सारी जानकारी दी गई है. प्रोसीजर ऑफ रिलीज ऑफ ग्रांट बाय यूजीसी, यूजीसी कैसे फेलोशिप रिलीज करती है, सारा प्रोसेस दिया. प्रोसीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पॉइंट तक आप पढ़ लें. रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफर, क्या ये फेलोशिप ट्रांसफर हो सकती है अगर आपने पीएचडी छोड़ दी, एमफिल छोड़ दी तो. कैंसिलेशन है अवार्ड, आखिरी पॉइंट, कैसे कैंसिल हो सकता है. द फेलोशिप इज लायबल टू कैंसिलेशन इन केस ऑफ इफ द स्कॉलर इज फाउंड टू बी इनएलिजिबल टू रिसीव द फेलोशिप at any point of time during the entire duration of the fellowship. If it is found that the fellowship has been availed, is claimed by furnishing false, wrong, misleading information. If any adverse report is received from the institution, misconduct, misbehavior, corrupt practices, ये इन सब कंडीशन में कैंसिलेशन हो जाएगी. अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च, अगर आप सही से रिसर्च नहीं कर रहे तब भी कैंसिल हो सकता है. वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस गाइडलाइंस, प्लेगरिज्म और अनएथिकल प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, अगर आप किसी के थीसिस को कॉपी कर रहे हैं तब भी वो कैंसिल हो सकती है. कैंडिडेट्स इज ऑलरेडी अवेलेबल स्कॉलरशिप फेलोशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, अगर किसी दूसरे सोर्स से आप फेलोशिप ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी. कैंडिडेट इज फाउंड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीएचडी, अगर आपने कहीं पे भी एम्प्लॉय ले लिया, जॉब ले ली है तो फेलोशिप कैंसिल हो जाएगी. मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को लेकर आपके मन में जो सवाल थे, साथ ही साथ आप जानना चाहते थे कि क्या गाइडलाइंस चेंज हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गई होगी, मिल गई होगी. अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.
गाइडलाइंस की अमेंडेड कॉपी की लिंक PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप क्लिक कर डाउनलोड कर आराम से सारे गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।